Good afternoon, everyone. Am I audible? Okay, thank you, Rishabh. Everyone, good afternoon. Yeah, thank you, Shashank. So, in the last lecture, we discussed about activity diagram. So, who has completed the assignment? Just let me know. Because as of now, 12 diagrams are there that are pending. जल्दी से बताओ किस किसने किया। दीक्षा, आस्था, आपने ही भेजे थे ना मुझे डायग्राम्स। मुझे याद नेम याद नहीं आ रहा है। Okay, Rishabh, so can you show your diagrams? Okay, Asta, noted. ऋषभ, आप शो कर सकते हो अपना डायग्राम? No, no need to send. I can make you co-host for a time. So if you are accessing your laptop, then easily you can share. Will it be okay? After lecture, I have another assignments. Okay. So अगर अभी के लिए रेडी है तो बताइए. चलिए. एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लिए कि ये डायग्राम्स आप मेरे लिए नहीं बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, है ना? क्योंकि मैं तो अभी अ, हो सकता है अगले सेमेस्टर में मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ किसी और सेक्शन को, है ना? आप और हम लोग साथ में ना पढ़ रहे हो, है ना? तो ये मेरे लिए मत बनाइए, अपने लिए बनाइए, अपनी लर्निंग के लिए बनाइए. ओके, चलिए. So let's discuss about one more diagram, that is state chart diagram. Just let me know, is it visible to you guys? Okay, thank you. Okay, let's proceed. In today's lecture, we will discuss about state chart diagram. So first of all, let's understand what is exactly it. State chart diagram is one of the important UML diagrams used to model the dynamic nature of a system. That means this particular diagram is expected to show the dynamic behavior of the system. How can we say the dynamic? Because it can represent the phase-wise or step-by-step procedure, that how a state is going to be changed, how a phenomena, or simply you can say the transition, है ना? कि एक ऑब्जेक्ट अब ट्रांसमिट होकर के दूसरा ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्या फिनोमेना हो रहा है. दैट मीन्स इट इज डायनामिक इन नेचर. दैट्स व्हाई so state diagram is expected to show a dynamic nature of the system. They define different states of an object during its lifetime and these states are changed by events. So देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कोई इसी ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे,
that will be represented to mention or depict different states कि अभी पहले वाले पास में वो किसी और स्टेट में था, अभी वो किसी और कन्वर्जन होकर के कुछ और स्टेट हो गई, उसकी ट्रांजिशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और कब तक एप्लीकेबल रहेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम, कि वो कहाँ से इनिशिएट हुआ और कहाँ पे जाकर के फिनिश हुआ। ओके, जैसे एक लाइफ साइकिल हम बनाते हैं ना, सो दिस इज लाइक दैट, कि हम यहाँ पर स्टेट चार्ट डायग्राम में भी ऑलमोस्ट सेम चीज बताएंगे कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और कहाँ पर जाकर ये एंड हुआ या होगा at later stage. And definitely these states are changed by various events, कि ये इवेंट हुआ तो ये काम हो गया, ये वाला इवेंट हुआ तो ये काम हो गया, like state chart diagrams are useful to model the reactive system, कि जैसे किसी एक इवेंट पर कुछ कोर्स ऑफ एक्शन परफॉर्म होगा, है ना, जैसे लॉगिन हमने किया, सो लॉगिन के बाद क्या होगा, यूजर विल बी एप्लीकेबल टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, सो दिस इज व्हाट रिएक्शन, reactive system. Okay. Next may include reactive system can be defined as a system that responds to external or internal events, कि ऐसा कोई भी सिस्टम जो रेस्पॉन्ड करे, किसको रेस्पॉन्ड करे, आइदर इंटरनल इवेंट्स और एक्सटर्नल इवेंट्स, की जो सिस्टम में ही इनेबल्ड है फीचर्स, उन पर अगर कुछ आ रहा है, दैट मीन्स इंटरनल इवेंट्स, otherwise an external source another application may be there that can access, so inputs coming from that device or that application, that is considered as external events. Okay, so reactive system must respond both of these events, either internal or external. State chart diagram describes the flow of control from one state to another state, कि एक फेज से दूसरे फेज तक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो भी ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, it depicts the flow of control, how the control flow is moving from one state to another state till or controlling of the entire the life cycle system. States are defined as a condition in which an object exists and it changes when some event is triggered, that we have already covered, that कि कोई एक कंडीशन होगी जिसके बेसिस पर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता होगा, और डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन और सम इवेंट some changes are being expected. Okay, the most important purpose of state chart diagram is to model lifetime of an object from creation to termination, कि जो इसका important feature है, important objective है state chart diagram ड्रॉ करने का, that is to what, just to model, just to showcase, just to represent lifetime of an object from creation to termination, जहां से शुरू हुआ और जहां पर फिनिश हो रहा है, वो पूरी लाइफ साइकिल किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शो करना is the main purpose of state chart diagram, because through this diagram we are supposed to define represent various states, that's why it is known as state chart diagram. Okay, so let's have a look on state chart diagram notations. These are the simple notations, जल्दी से इनको ड्रॉ कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये तो पहले एक्टिविटी जैसे ही है, स्टार्ट पॉइंट एंड इनिशियल स्टेट सिंपल है, फिल्ड सर्किल एंड देन एरो, and as far as final state or end point is concerned, then arrow, then two circles are there, inner circle is filled and outer is empty. पहले ये दो ड्रॉ कर लीजिए, फिर स्टेट के बारे में बात करते हैं। हरिया so I hope you have drawn all these notations. Let's focus on state. अब देखिए स्टेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. The very first method is just mention a rectangular shape. Okay, इस rectangular shape में हम उस particular state का नाम लिख देंगे. First method is this one. Another method is कि हम अभी भी rectangular shape बना रहे हैं, but it can be divided into two parts. In the above part will be known as state name, and another part is expected to mention do or do what, a specific action,
कि इस पर्टिकुलर स्टेट में एक्शन क्या परफॉर्म होना है। एडिशनली द एजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल और कॉर्नर्स ऑफ दिस रेक्टेंगल मस्ट बी राउंडेड। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। आइदर यू कैन यूज द फर्स्ट वन और सेकंड वन, बोथ आर एप्लीकेबल। तो अगर आप कुछ और बुक्स या इंटरनेट की कुछ वेरियस साइट्स रेफर कर रहे होंगे, तो कहीं पर आपको पहला वाला मिलेगा, कहीं पर दूसरा वाला मिलेगा, दोनों ही करेक्ट है। ओके, ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही डायग्राम में आपने पहले ये वाला यूज कर लिया, फिर आगे के स्टेट्स के लिए आपने ये वाला यूज कर लिया, वो गलत हो जाएगा। या तो आप सारे रेक्टेंगल, जस्ट वेट, या तो आप सारे ये वाले यूज कीजिएगा या फिर सारे ये वाले यूज करिएगा। ओके, सो दैट्स टोटली अप टू यू। तो अभी आज के लेक्चर में हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हम नॉर्मल वाले रेक्टेंगुलर शेप से देखेंगे। अगला वाला एग्जाम्पल जो थोड़ा सा डिटेल्ड है, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें मेंशन कर रहे हैं हम, तो अगला वाला हम इस वाले पर देखेंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो दिस वन इज द फॉर एग्जांपल वन ट्रांजिशन चार्ट। अब देखिए ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है, इस स्टेट चेंज को हम क्या करें, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो इट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन चार्ट, ये यहाँ से पता लग रहा है हमें। ट्रांजिशन चार्ट फॉर बुक इन अ लाइब्रेरी सिस्टम। आप कोई भी लाइब्रेरी एज्यूम कर लीजिए, वहां पर एन नंबर ऑफ बुक्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर बुक, एनी स्पेसिफिक बुक। अब जो भी बुक आपने इसकी ले रखी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, चाहे वो नवाथी सॉरी प्रेसमैन की हो या राजीव मॉल की हो या के वाल हो, वट एवर द बुक इज, उसको एज्यूम कर लीजिए। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक दैट इज अवेलेबल इन लाइब्रेरी सिस्टम। अब ये बुक लाइब्रेरी में कब आई, क्या क्या इसकी स्टेट ट्रांजिशन हो सकते हैं या हुए होंगे, और कब ये बुक लाइब्रेरी से आउट हो जाएगी, ये पूरा लाइफ साइकिल हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेट चार्ट इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो बुक इज एन ऑब्जेक्ट, तो इस पर्टिकुलर बुक का, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पूरा लाइफ साइकिल इन अ लाइब्रेरी सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। ये कहाँ से ये बुक इनिशिएट हुई थी और कहाँ पर जाकर ये एंड हो रही है। ओके, सो लेट मी शो यू द डायग्राम। I am giving 2 minutes to draw this diagram and then I will start explaining. तो 2 मिनट है सभी के पास, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए। और यू वांट टू टेक ए स्नैपशॉट देन यू कैन डू सो। ओके ऋषभ, नोटेड। Completed, just let me know।
So I hope you guys have drawn this particular diagram or taken a snapshot. So let me start explaining. आप ध्यान से फोकस इधर रखिएगा. आप ये जो ड्रॉ कर रहे होंगे बाई चांस वो अभी ड्रॉ करना छोड़ दें. इसको फोकस करें. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके. This particular transition chart कह लीजिए या state chart diagram will start from this point. Okay. Filled circle and arrow, that means it is the starting point, initial point. अब initial point पे क्या हो रहा है? देखिए क्या मेंशन किया, परचेज बुक, दैट समवन इज गोइंग टू परचेज एनी स्पेसिफिक बुक फॉर लाइब्रेरी पर्पसेस. ओके. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इट इज न्यू टू लाइब्रेरी, कि ये बुक बिल्कुल न्यू थी. ठीक है, पहली बार लाइब्रेरी में आई है, तो दैट मीन्स इसके लिए हम इनिशिएशन यहाँ से मानेंगे. बुक हो सकता है बुक सेलर के पास 1 साल से पड़ी हो, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी सिस्टम. ठीक है ना, तो लाइब्रेरी में कब मानी जाएगी, जब से वो बुक परचेज हुई फ्रॉम दैट स्टेट. अब ये जो जितने भी रेक्टेंगल दिख रहे हैं ये आपको सब स्टेट हैं. ये बुक की अलग अलग स्टेट की किस किस फॉर्म में वो बुक हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली डेफिनेटली इट विल बी अ न्यू बुक. देन बुक इज नंबर्ड एंड स्टैम्प्ड. अब आपने देखा होगा कि जो भी बुक आपने लाइब्रेरी से अगर बोरो की होंगी, सो ईच एंड एवरी बुक इज नंबर्ड. उसका कोई एक यूनिक नंबर होगा एंड डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर बुक में डेफिनेटली विल हैव स्टैम्प ऑफ आइदर, जैसे जीएलए में है तो हम जीएलए की बात करेंगे, किसी और इंस्टीट्यूशन की होती तो वहां की स्टैम्प होती. ओके. सो डेफिनेटली ऑल द बुक विल बी नंबर्ड एंड स्टैम्प्ड. ओनली आफ्टर दैट this particular book will be available to स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स. ठीक है, तो ये इस काम के बाद ही अवेलेबल होगी बुक. ओके. अब अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन हो सकता है कोई ले रहा है कोई नहीं भी है, वो स्टॉक में पड़ी हुई है अभी तक. ठीक है, बट इन जनरल वी आर कंसिडरिंग दैट दिस पर्टिकुलर बुक इज इश्यूड. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड बुक इज इश्यूड ओवर हियर. तो मान लीजिए आपने वो बुक परचेज बोरो कर ली, so that means in library record now book is issued to you, and after some days or after some time it is expected that definitely you will return this book. So whenever you are going to return this book, this will be once again available. आपने रिटर्न कर दी, अब वो फिर से अवेलेबल होगी. तो अब ये देखिए ये जो दो पैरेलल लाइंस है ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ दिस बुक. ओके. मे बी थाउजेंड्स, मे बी इन हंड्रेड्स, वट एवर द नंबर इज. कि एक ही बुक है, अब आपके लिए पहली बार है, आपसे पहले आपके सुपर सीनियर्स पढ़ चुके होंगे, मल्टीपल टाइम्स वो इशू हुई होगी, मल्टीपल टाइम्स वो रिटर्न हुई होगी, और आप जब पास आउट हो जाएंगे तो आपके जूनियर्स आएंगे, वो इसको इशू कराएंगे, वो रिटर्न करेंगे. गेटिंग इट. तो मल्टीपल टाइम्स दिस साइकिल विल बी एग्जीक्यूटेड. बट एट लेटर स्टेज, और you can say after 10 years or 15 years or even 20 years, one more phenomena may be there, one more transition may be there. This is what book will be old और मे बी डैमेज्ड. कि बार बार वो पेजेस पलट रहे हैं, कुछ नोट करते जा रहे होंगे, जैसे हम लोग मना भी करते हैं लेकिन फिर भी एक लिख देते हैं बुक के ऊपर कुछ, तो वो डैमेज हो रही है बुक, है ना, वो ओल्ड हो रही है. नाउ सम पेजेस आर मिसिंग एज वेल, सो देयर इज नो यूज टू कैरी दिस बुक. सो इट इज बेटर टू dispose that particular book from a library. Getting it? So this is what another transition, another state. So you can see various states are there, from new to available, from available to issued, from issued to disposed. And when the book will be disposed from the library, it will be automatically expected that this is the end of the system, end of this particular object in a library system. जरा बताएं ये बात क्लियर है क्या सभी को? बता, दिस डायग्राम इज क्लियर और नॉट? ओके, गुड. तो ये तो था देखिए एक एग्जांपल जो मैंने स्टेट सिंपल रेक्टेंगल वाले एग्जांपल मैंने लिया है. ठीक है, अब एक एग्जांपल वो देख लेते हैं जिसमें वो दूसरे तरह का रेक्टेंगल है, जिसमें एजेस उसकी राउंडेड है एंड दैट इज सेग्रीगेटेड सेपरेटेड विद टू विद वन लाइन. ओके, टू इन टू पार्ट सिंपली. So let's have a look over. Now case 2, example 2, यूनिवर्सिटीज फॉर्म फिलिंग सिस्टम. अब किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन मान लीजिए यार कोई न्यू एडमिशन है, वो फॉर्म फिल कर रहा होगा,
इस तरह का कोई फॉर्म फिलिंग सिस्टम है, ठीक है। फॉर दैट केस वी आर सपोज टू ड्रॉ स्टेट चार्ट डायग्राम और ट्रांजिशन डायग्राम. So I'm going to share this image. Once again, I'm giving 2 minutes to you guys to draw this diagram. Hurry up. Okay, Rishabh, noted. Those who are drawing this diagram, just please do it. Hurry up. Then after that, I will start discussion on this. So I hope you have done it. So let's start explaining. Focus over here. As usual, this diagram will be started from this end where a filled circle is there and an arrow. Now this is a notation for state. अब ये जो आप rectangular shape देख रहे हैं, now this is state. Okay. However, it can be represented by in this particular rectangle. Two parts are there. The very first part is known as state name. कि इस state का नाम क्या है? And second part is mentioning the course of action that is being expected by this particular state. Okay. So the syntax is do colon and action. Whatever the task is being expected. तो पहले वाले केस में देखें, look at over here. I have mentioned as स्टेट नेम इज रजिस्ट्रेशन. तो ऑब्वियसली लॉगिन से पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो मैंने मेंशन कर दिया हुआ है क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट होगा. डायरेक्टली आई कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन, ये ध्यान रखिएगा. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट चार्ट, क्यों? बिकॉज इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, इट ऑलवेज डिपेक्ट द लाइफ साइकिल कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर फिनिश हो रहा है. तो रजिस्ट्रेशन से ही स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि
लॉगिन से पहले समवन हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके, तो रजिस्ट्रेशन, अब ये क्योंकि यूनिवर्सिटी का फॉर्म है तो हम मैक्सिमम करके चले स्टूडेंट्स के लिए होगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन इन एक्शन और डू कोलन व्हाट, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, कि स्टूडेंट्स आर सपोज टू रजिस्टर themselves. After successful registration, students are supposed to pass SID and password, student ID and password to the system, and then this particular objects will be transformed from registration to login. अब आप login कर सकते हैं by passing your ID and password. Okay, so what action should be there? Student login should be performed. Okay, just wait. Okay, let's proceed. Then logging details will be checked. Then form filled by students. But if wrong details are there, then your data or form will be cancelled. कि आपने appropriate column में fill नहीं किया. For example, email address आप accurate नहीं डाल रहे हैं जो as per validated है email, वो अगर आप नहीं fill कर रहे हैं, then automatically your form will be rejected. अगर नेम पर आप नेम न डाल के कुछ न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी रिजेक्टेड। ओके, सो देयर वेरियस वैलिडेशन स्कीम्स में बी देयर। तो अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी, जो मैंडेट फील्ड है, अगर आपने उसमें कुछ फिल नहीं किया तो ऑब्वियसली योर फॉर्म इज नॉट गोइंग टू बी फिल्ड। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ बैक ट्रैक लूप ओवर हियर, कि अगर नहीं होगा तो आप वापस लॉगिन पर ही आ जाएंगे। इफ द फॉर्म इज फिल्ड बाय स्टूडेंट सक्सेसफुली, देन फॉर्म विल बी अवेलेबल for making the payment. Okay, so next state is what? Make payment. Course of action is what? Do what to do? Payment by student. Now student it needs to pay for this particular form, whatever the charges are. After successful payment, what should happen? Another state transition is there. What? Print. Now you will be applicable to take printout of your form. Course of action: download and print receipt. कि अब वो फॉर्म की भी हो सकती है, रिसिप्ट की भी हो सकती है, जो पेमेंट आपने किया था, तो उसको आप प्रिंट कर लेंगे। डाउन डाउन प्रिंट कैसे करेंगे? डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। एंड देन इट शुड बी ट्रांसफॉर्म फॉर लॉग आउट सेशन। A course of action, log out by students, and finally this is the end state, followed by an arrow with two circles. Inner circle is filled and outer circle is empty. अब thoroughly इस डायग्राम को देख लीजिए और जरा चेक करके बताइए कोई क्वेरी है, डाउट है इसमें, देन प्लीज आस्क। Look at this diagram thoroughly. However, once again, I would like to say, this is not the only solution. ये जो मेरी इमेजिनेशन थी वो आपके सामने है, आपकी इमेजिनेशन मुझसे बेटर हो सकती है। If it is valid, then that can also be a valid answer or valid straight chart diagram. Okay, तो रट के मत जाइएगा कि यही सही है। ये as per me है, मैंने जो सोच रखा था उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेजिनेशन अलग हो सकती है। So look at this diagram and let me know if any query. ये जो फिनोमिना है फॉर्म फिलिंग का, इसकी स्टेट हम शो कर रहे हैं। हु इज आस्किंग? निखिल। निखिल, योर आंसर इज कि जो भी फिनोमिना है यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलिंग का, तो यू कैन से यूनिवर्सिटी फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट, है ना? उसका एक फीचर है फिलिंग, उसकी उसको फिल करना है। अब वो फिल करने के लिए कहाँ से कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो वो सारे स्टेट्स हमने यहाँ पर शो किए हैं। ओके,
So any query regarding this diagram or these two examples, the previous one and this one? So if no query, then proceed. So as usual, these are the references from where I have taken this notes for this lecture. So this is all about from my side for today's lecture. Still, it's 2:38 by my watch, my system clock. So the lecture will be automatically ended at 2:41. Okay. So meanwhile, if you have any query, then you can ask. Or if you have attended the lecture up to at least 30 to 35 minutes, then you can leave this session. Otherwise, the lecture will be ended at 2:41. Meanwhile, you can ask if you have any query.